नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप एवरीथिंग इज वेल। वेलकम टू डिवाइन टॉक्स विद नितिन। जैसा हमने कल चैनल को स्टार्ट किया है, और ब्रीफ कर देता हूँ कि हेयर वी विल ट्राई, हमारी कोशिश रहेगी स्पिरिचुअल बुक, स्पिरिचुअल टॉक्स करने की, लोगों के एक्चुअल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस शेयर करने की और उन पे बातचीत करने की। आप लोग भी ऑलवेज वेलकम है टू शेयर योर एक्सपीरियंसेस, या कोई भी बुक की रीडिंग आप चाहते हो उसके लिए कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, हमें ग्रो करने में मदद करें। तो कल हमने सर्च चार्ज विद डिवाइन लव, जी हाँ, सुखमनी जी की बुक है सर्च चार्ज विद डिवाइन लव का फर्स्ट चैप्टर रीड किया था। बिना टाइम वेस्ट किए हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं रीडिंग। इंग्लिश में बुक है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा, मैं रीड कर दूंगा, लास्ट में सिनॉप्सिस एक फटाफट हिंदी में भी कर देंगे फॉर ऐसे कोई हमारे व्यूअर्स हों जो चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। Second chapter is meeting the guru who changed the destinies. Where are we going? I asked my mother, hoping it was not another trip to some saint or some religious place. Being a very pious and spiritual person, my mother loved taking such trips, and my sister and I always got tagged along. Although I never saw my sister protest, I was not too keen on visiting any more saints. I had met too many, and each one had something or other to say me. You must pray more. Your stars are bad. Your future life is not going to be very happy one. And one even told me that my birth chart was not even worth reading, since there was not even a single good thing in it. Having heard such negative things about my life endless number of times from endless number of saints and soothsayers, I was not ready to hear it one more time. तो यहाँ पर बात हो रही है कि जब सुखमनी जी के मदर ने उनको कहा कि कल हमने किन्हीं गुरु संत के पास जाना है, तो सुखमनी जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो बहुत से पंडितों, बहुत से संतों पे पहले जा चुकी थी। हर कोई यही कहता है कि तुम्हारी जो डेस्टिनी है वो अच्छी नहीं है, तुम्हारी कुंडली की प्लेसमेंट, चार्ट की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो सुखमनी जी सुन के बहुत ज्यादा डिसहार्टन हो चुके थे। ऑल्दो तो वही यही क्वेरी कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार कहाँ जाना है, क्यों जाना है, और उसका क्या बेनिफिट है। We are going to meet Guruji in Jalandhar. I have heard he is powerful and can change a person's destiny. I could not believe my mother had fallen for this. Change a person's destiny, that's a new one. Mom gave me one of her looks that told me that my going was not an option. So, along with my mother, grandfather, and sister, I was on my way to meet great Guruji who changed destinies. तो सुखमनी जी के मदर ने कहा कि हमें गुरुजी के पास जाना है जालंधर। उनके बारे में हमने बहुत सुना है, वो बंदे की किस्मत तक बदल देते हैं। जिस पर सुखमनी जी शॉक्ड हुए और उन्होंने कहा कमाल है, ये नई चीज पता लगी कि कोई किस्मत भी बदल देता है। जिस पर सुखमनी जी के मदर ने उनको एक रफ लुक दिया, although they decided to go to Guruji next day. We reached the temple in Jalandhar at about 11 a.m. and were told that it was closed for the day as Guruji was resting. As soon as we were told this, word came from Guruji that we should be permitted to come in. We were made to sit in the temple and were offered tea. Guruji walked in soon after and asked us to sit next to him. जैसे ही वो जलंधर मंदिर पहुंचे अगले दिन 11 बजे के करीब, तो वहां सेवादार जो थे उन्होंने बताया कि आज जो दरबार है, मंदिर है, वो क्लोज है क्योंकि गुरुजी रेस्ट कर रहे हैं। जैसे ही उनको ये बताया गया, इतने में ही गुरुजी अंदर से आ गए और उनको बैठने के लिए आज्ञा दी, चाय दी, और गुरुजी ने उन लोगों को अपने पास बुला लिया। हाउ डू आई डिस्क्राइब गुरुजी? आई गेस I can say he was bald and wore silk robes that seemed out of the world. But the truth is, even an ordinary person like me could see that there was something very different about him. His face had a glow of 1,000 bulbs. There was a fragrance around him that smelt divine, and his eyes seemed to pierce a person's soul. He had the aura of king, yet was humble and kind and loving like a father. I was speechless. तो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो गुरुजी की, गुरुजी क्लीन शेव थे। गुरुजी ने अपना हेड भी शेव किया हुआ था, सिल्क का चोला उन्होंने पहना हुआ था, उनके चेहरे पर नूर था हजारों बल्ब की रोशनी के समान। उनसे एक महक आ रही थी, बड़ी स्पिरिचुअल, बड़ी ही डिवाइन आध्यात्मिक वो थी। उनकी आंखें जब वो देखते थे तो ऐसा लगता कि जैसे वो किसी की सोल के अंदर तक झांक रहे हैं। बहुत ही राजा लाइक उनका ऑरा था, बट स्टिल वो बड़े हम्बल और एक फादर के तरीके प्यार करने वाले थे। तेरा नाम की है? What is your name? He asked me. गुरुजी ने पूछा तेरा नाम क्या है, क्योंकि गुरुजी पंजाबी बोलते थे। सुखमनी, I answered.
आई वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ माई नेम। बड़ा चंगा नाम है, गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा नाम है। संत महाराज जी, द वन हु सेंट अस टू गुरुजी वाज एक्सट्रीमली गुड विद एस्ट्रोलॉजी एंड had made my birth charts for all of us. When my birth chart was read out to me, I was extremely disappointed and saddened. There was nothing that I liked about it. I fell about डिप्रेशन बिकॉज ऑफ इट। दैट डे गुरुजी आस्क्ड मी, कुंडली बनवाई है अपनी, सुन के डिप्रेशन पे गया। तो सुखमनी जी बता रहे हैं कि संत महाराज जी जिन्होंने उनको गुरु जी के पास भेजा था, वो बहुत ही अच्छे ज्योतिष थे, बहुत ही अच्छी कुंडली बनाते थे और कुंडली रीड करते थे, उसका एनालिसिस करते थे। तो उन्होंने कुंडली उनसे कुंडली के एनालिसिस के बारे में सुनकर सुखमनी जी डिसहार्टेंड हो रखी थी और परेशान रहती थी। तो जैसे ही उन्होंने गुरुजी को कुछ नहीं बताया, स्टिल जैसे ही वो गुरुजी के सामने बैठे, बातचीत शुरू हुई, तो गुरुजी ने कहा कुंडली बनवाई है अपनी, सुन के डिप्रेशन पे गया। You have made, you have had your birth chart and chart read, and on hearing the contents, you have since been in depression. I was taken aback as how he know and loved. Yes, Guruji, there wasn't a single thing in it that I liked. He smiled at me. चल फिर आज तो बाद मैं तेरी कुंडली बदल देती, जा फिर तो बनवा के देख ले, सब बदल देता। सबसे पहले तो सुखमनी जी हैरान हुए कि जब मैंने कुछ बताया नहीं तो गुरुजी को कैसे पता। तो भी उन्होंने हंसते हुए कहा, हाँ गुरुजी, मैंने कईयों को अपनी कुंडली दिखाई और मैं परेशान हो चुकी हूँ। इस पर गुरुजी ने कहा, जा आज से तेरे ही कुंडली बदल दी, दोबारा जाकर कुंडली बनवा, चेक कर, सब बदल दिया। Not completely believing him, and to avoid arguing, I politely thanked him and refused to get my chart made again. He gave me a look and told me about my health issue I had been facing since few years. I could not believe that how someone who had just met me briefly could tell me about my illness. तो वो कहते हैं गुरुजी ने कहा, आज से तेरे ग्रह बदल दिए, कुंडली बदल दी, जाके दोबारा बनवा ले। तो उन्होंने बिलीव तो नहीं हुआ, बट स्टिल उन्होंने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे जरूरत नहीं, मैं बिलीव करती हूँ। और उन्होंने बात करने को, इतने में ही गुरुजी ने उनको बताया और कहा उनकी उन बीमारियों, उन हेल्थ इश्यूज के कारण जो के बारे में जिनको वो बहुत सालों से झेल रही थी। तो सुखमनी जी बड़े हैरान हुए कि गुरुजी को ये सब कैसे पता। I remember all of the saints I visited had to be told about the problems I was going through, but this was the first time I had met someone who already knew. तो वो कहते हैं कि जब भी मैं किसी संत या सूत शेयर पर जाती थी, तो मुझे याद है कि उनको पहले हमें बताना पड़ता था, हमें ये समस्या से गुजर रहे हैं, दिक्कत हो रही है। ये पहले ऐसे महापुरुष थे, संत थे, जिन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ जाने, देखते ही सब कुछ उनको बताने लग गए। He seemed to read me like a book. वो मुझे ऐसे पढ़ रहे थे जैसे कोई खुली किताब हो। Guruji was like a magnet. I could not pull away. Even though I had a few questions, I did not ever have any doubts that I had finally come to the right place. I had come home. In the few hours that we spent with him that day, I felt so much of love and affection from him. And for him that by the end of the day, I didn't want to go back home. तो सुखमनी जी कहते हैं कि गुरुजी एक चुंबक की समान थे। वो बिन पूछे सिर्फ देख के ही ऐसे ऐसे निचोड़ निकाले जा रहे थे, ऐसी ऐसी बातें बचाए जा रहे थे। इसको देखकर वो अमेज्ड हुए और गुरुजी से उनको इतना अट्रैक्शन, इतना लगाव हो गया कि उन्हें लगा कि यहीं रुक जाया जाए। We were told to come regularly for next 15 days and strangely I looked forward to meeting him. गुरुजी ने कहा लगातार 15 दिन आना है, और जिसे पहली बार सुनकर सुखमनी जी बड़े खुश हुए किसी संत और ऐसे के पास जाने के लिए। To the amusement of my family, I used to be the first one to get ready and waiting to be taken to Guruji. The next day we entered the temple. Guruji suddenly looked at my mother and said, तो जैसे अगले दिन वो लोग मंदिर गए गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने सुखमनी जी के मदर को देखते ही कहा, तू कुरमिंदर कौर दी बेटी है कि क्या तुम कुरमिंदर कौर की बेटी हो ना? तेनू पता है तू मेरे को 70 साल दी तपस्या बाद आई है। डू यू नो You have come to me after 70 years of meditation. तुम 70 साल की तपस्या के बाद मेरे पास आई हो। My mother was only 43 years of age at that time, which only meant that he was talking about her previous life. He said my mother was his elder sister in past 2 lifetimes. She was elder to him by 4 years then and even in this birth. तू मेरे को इस जन्म में भी 4 साल वड्डी है। तो गुरुजी ने सुखमनी जी के मदर को कहा कि तुम कुरमिंदर कौर की बेटी हो, तुझे पता है कि तुम मेरे पास 70 साल की तपस्या के बाद आई। और उस समय सुखमनी जी के मदर की एज थी 43 इयर्स। दैट मीन्स कि गुरुजी पिछले जन्मों की भी बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि पिछली लाइफ में भी आप मेरे बड़े सिस्टर थे और 4 साल मुझसे बड़े थे, और इस जन्म में भी तुम मुझसे 4 साल बड़ी हो। Being a student of psychology, I was greatly fascinated by the subject
of past life and life after death. Needless to say, he knew about my fascination. He came and sat next to me on the floor and looked into my eyes. I tried to be brave. I looked in his eyes, and what I saw in them sent shivers down my spine. His eyeballs started to rotate, and in them I saw something. But I was so scared. I quickly looked away. Guruji smiled and asked, "Do you know what is transmigration of souls means?" तो सुखमनी जी साइकोलॉजी के स्टूडेंट थे. ये सब बातें सुनकर उनको बड़ा एक फैसिनेटेड सा फील हुआ. उन्हें पास्ट लाइफ और लाइफ आफ्टर डेथ पे भी बहुत इंटरेस्ट था. तभी गुरुजी उनके पास आकर बैठ गए और उनकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगे. तो सुखमनी जी को थोड़ा सा शुरू में डर लगा, फिर उन्होंने आंखों में आंखें डालकर देखा तो गुरुजी की आंखें रोटेट होने लगी, जिसे देखकर सुखमनी जी घबरा गए. और गुरुजी ने उनसे पूछा, "Do you know about transmigration of the souls?" Transmigration of souls is a belief among various cultures where it is believed that soul never dies and keeps taking birth in different bodies. So transmigration होता है ये belief जो कई कल्चर्स में हमारे उसमें माना जाता है कि आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती, वो सिर्फ अपनी बॉडी जो है चेंज करती रहती है. He further said, "Do you also know that a lot of souls from the West have taken birth in India at this moment?" गुरुजी ने कहा, "क्या तुम्हें पता है बहुत सी सोल्स ने जो वेस्ट में थी पिछले जन्म में इंडिया में बर्थ लिया." ये सुनकर सुखमनी जी शॉक्ड हो गई. क्यों? क्योंकि आई हैड बीन सीन फ्लैशेस ऑफ माय पास्ट लाइफ. मोस्ट ऑफ देम आई वाज नॉट एन इंडियन. उनको अपनी पास्ट लाइफ का जो एक फ्लैशेस दिखते थे तो उन्हें ये पता था कि मैं वेस्ट में पैदा थी लास्ट टाइम, नॉट इन इंडिया. हाउ डिड ही नो? Seeing my badly shaken up, he turned to my mother and said, "आज मैं तेरी बेटी हूँ, शिवजी दे थोड़े दर्शन कराते." जैसे कि सुखमनी जी थोड़ा सा घबरा गए थे, शिवर हो गए थे, तो गुरुजी ने सुखमनी जी के मदर की ओर देखा और उनको कहा कि आज मैंने तेरी बेटी को शिव जी के थोड़े से दर्शन करा दिए. Bring betel leaves worth ₹100. I shall do Sukhmani's operation tomorrow, Guruji told my mother. Before giving us leave for the day, I had heard that Guruji cured people by placing betel leaves over the affected area. I had also seen a spoon next to his asan chair, which he used to carry into the room known as OPD. This is scary business. I told my mother that there is no way I'm going to let anyone take me to the OPD and do some kind of unconventional operation. The next day, I very hesitatingly went back to him, and the first thing he asked my mother was about the betel leaves. All day, I tried to get glimpse of the room everyone called OPD. The door always remained shut, and my imagination ran wild. Does he actually cut open the people inside the room? What does he do with the spoon? Scoop things out. The thought was enough to make me panic and sweat. All this while, Guruji was reading my thoughts and having a laugh at my expense. He gave me a smile and finally asked my mother to hand him the betel leaves. He held them and said some prayer and handed them back to her, saying, "Put these on Sukhmani's stomach for an hour. When you go home and after an hour, dispose them in flowing water or bury them in a clean area." I took a breath of relief. तो गुरुजी ने कहा कि अगले दिन जब आओगे तो पान के पत्ते लेकर आना, मुझे सुखमनी का ऑपरेशन करना है. 100 रुपए के पत्ते मंगवाए थे. तो वहां पर गुरुजी के दरबार में एक उन्होंने रूम बनाया हुआ जिसे सब ओपीडी रूम कहते थे, क्योंकि गुरुजी वहां ले जाते थे और अपने अनकन्वेंशनल वे में चेकअप करते थे. एक चम्मच से फेरते थे, जिसे एक्सरे भी कहा जाता था कि गुरुजी चम्मच से एक्सरे करते. तो वो देखकर, वो सुनकर सुखमनी जी बहुत घबरा गए. तो उन्हें लगा कि मैं तो भैया कल इस ओपीडी में नहीं जाऊंगी. गुरुजी चम्मच से क्या करते होंगे, क्या स्कूप निकाल लेते होंगे, क्या करते हैं. ऑल्दो ये बात वो सोचते रहे, तभी गुरुजी ने देखा और स्माइल से देखकर उनको कहा, सुखमनी जी के मदर को पत्ते दिए कुछ पढ़कर और कहा कि ये सुखमनी के स्टमक पर रख देना 1 घंटे के लिए और उसके बाद इनको बहते हुए पानी में बहा देना या साफ जगह पर दबा देना. अपनी बेटी मैनू दे दे. Give your daughter to me, Guruji told my mother one day. I was shocked to hear this. I actually thought my mother just gave me away to him. I imagine cleaning, sweeping, mopping, cooking in his temple for the rest of my life. At that time, the very thought seemed depressing. Guruji, मेरी दोनों बेटियां मैं आपको देती हूँ. Guruji, my both daughters I give to you, said my mother. I looked at Guruji, hoping he did not mean what I was thinking. He laughed at my foolish thoughts and said, दोनों मेरिया खास बेटियां ने. तो गुरुजी ने सुखमनी जी के मदर को कहा, अपनी बेटियां मुझे दे दे. जिस पर सुखमनी जी के वाइल्ड थॉट्स आने लगे कि हाय मम्मी देना दें, लिटरली ना दे दें, यहाँ झाड़ू पोछा करूंगी, ये रहूंगी, वो. ऐसा सोचने लगे सारी उम्र मुझे यही करना पड़ेगा.
तो सुखमनी जी के मदर ने विद ड्यू रिस्पेक्ट कहा, गुरुजी मेरी दोनों बेटियां आपकी ही हैं। तो गुरुजी ने सुखमनी जी की ओर देखा, स्माइल करते हुए कहा, दोनों मेरी खास बेटियां हैं। माय फैमिली एंड माय फ्रेंड्स थॉट आई वाज अ नास्तिक। I never bothered to correct them, nor did it hurt me to be called so. One morning, as I walked into Guruji's room, he said, "Lo, aa gayi Nastik, here comes an atheist." For the first time, it hurt me to hear that from him, but I kept quiet. He gave me one long look, then said, "Nahi, Nastik nahi hai, Rab naal naraz hai." तेन लगता है रब दूसरे लोग का है, तेरा नहीं। सुखमनी जी अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल्स कर रही थी, अपनी कुंडली से जो पता लगता रहता था, और वो वैसे भी जो फेस कर रही थी, तो उससे वो बहुत एथेस्ट हो गई थी, नास्तिक हो गई थी। तो वो अब अपनी फैमिली वाले भी उनके यही बोलते थे, फ्रेंड भी यही बोलते थे, तो वो किसी को करेक्ट नहीं करते थे। जिसे वो बोलना है, जो सोचना है, सोचते रहो। जब वो नेक्स्ट डे गुरु जी के पास आए, तो एंटर होते ही गुरु जी ने कहा, लो आ गई नास्तिक। जिसे सुनकर गुरु जी से ये सुनकर सुखमनी जी को बहुत बुरा लगा। गुरु जी तो जानी जानते, उन्हें सब पता है। तो गुरु जी ने कहा, नहीं, नास्तिक नहीं है, रब से बस नाराज है कि रब सबका है, सबकी सुनता है, इसकी नहीं। तो गुरुजी कहते हैं, मैं हर जन्म में तेरा गुरु सीगा, तेनू की लग गया, मैं तेनू इस जन्म में छड़ दवांगा। आई हैव बीन गुरु इन ईच ऑफ योर पास्ट लाइफ, सेड गुरुजी। तो गुरुजी ने उनको बताया कि हर जन्म में मैं तेरा गुरु था, तो तुम्हें ये कैसे लगा कि मैं तुम्हें इस जन्म में छोड़ दूंगा। कम एंड प्रेस माय फीट। आई क्विकली गॉट अप एंड स्टार्टेड प्रेसिंग हिज फीट इन द few days that I had seen him. One thing was certain, not everyone could touch Guruji, and if he asked someone to press his feet, it was considered a great honor. I realized that the more I pressed, stronger was a fragrance coming from his feet. मेरे दोनों पैरों पे पद्म है. I had padams in my both feet, said Guruji. At that time, I had no idea what a padam was, neither did I understand the importance of what he had just told me. तो गुरुजी ने सुखमनी जी को बुलाया, आ मेरे पैर दबा। और गुरुजी किसी किसी को बुलाकर ये इतनी बड़ी सेवा देते थे। तो सुखमनी जी को ये बात क्लियर थी। तो सुखमनी जी भागते हुए फटाफट आए और गुरुजी के पैर दबाने लगे, जिसपे गुरुजी ने कहा, क्या तुझे पता है कि मेरे दोनों पैरों में पद्म है? सुखमनी जी को उस समय तक ये नहीं पता था कि पद्म क्या होते हैं और गुरुजी ने क्या कहा। My mother, who was asked to press Guruji's hands, noticed that his hands were turning blue. She immediately pointed it out, thinking maybe something was wrong with him. तो सुखमनी जी के मदर को गुरुजी ने बाजुएं दबाने को कहा। तो जैसे ही सुखमनी जी के मदर बाजू दबा रहे थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि गुरुजी नीले पड़ने शुरू हो गए। तो वो डर गए, उन्होंने लगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी आपके हाथ नीले क्यों पड़ने लगे हैं? जिस पर गुरुजी ने कहा, असी शिव मीन्स आई एम शिव, मैं शिव हूं। गुरुजी लविंगली कॉल्ड माय मदर सुखी आंटी। तो गुरुजी सुखमनी जी के मदर को सुखी आंटी कहते थे प्यार से। वन डे ही कॉल्ड हर एंड सेड, सुखी आंटी तू रोज 2 बजे सवेरे उठ के गुरु नानक ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ कि नीचे आओ ਤੇ मेरी बेटियां ਦੀ शादी कराओ। Yes, Guruji, was all my mother could say. She was amazed to see how he mentioned her ardas exactly word to word as she had been saying it for past many years. तो गुरुजी ने सुखी आंटी को बुलाया, सुखमनी जी के मदर को। उनको कहा कि सुखी आंटी तू रोज सुबह 2 बजे उठकर गुरु नानक को अरदास करती है कि नीचे आओ और मेरी बेटियों की शादी कराओ। ले मैं आ गया। जिस पर सुखी आंटी बड़े हैरान हुए कि गुरुजी ने वर्ड टू वर्ड उनकी अरदास उनको बता दी, और गुरुजी को कैसे पता? तो गुरुजी ने कहा, तू रब नू बुलाया कर दी सी, ले मैं आ गया। कि आप भगवान को, प्रभु को, गुरु को याद करते थे, तो मैं आ गया। We were all so dazed that we didn't understand and understood the depth of what he was saying. हम इतने अमेज हो गए, वो कह रहे हैं कि हमने गहराई ही नहीं जानी कि गुरुजी ने कितनी बड़ी बात कह दी। I noticed that he took us all into his room and made us eat lunch with him. I noticed that he hardly ate much and distributed most of his food among us. हर किसी ਨੂੰ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ ਨਸੀਬ नहीं ਹੁੰਦਾ। खाओ तो देखो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो गुरुजी उनको अपने कमरे में ले गए, अपने साथ उनको लंगर प्रसाद कराया। तो उन्होंने नोटिस किया कि गुरुजी बहुत कम खाते थे और सब बांटे जा रहे थे भोजन जो था, खाना जो था इन लोगों को। और गुरुजी ने कहा कि महापुरुषों का ये महाप्रसाद है।
इसे खाओ और देखो तुम्हारे सब रोग बीमारियां कैसे भाग जाएंगे. In these 15 days, Guruji gave us a lot of his time and very patiently answered all our questions. Every day the Sankat was given food first and Guruji ate after feeding everyone. This was the first place where I saw that 4 to 5 people ate from one plate without hesitation. तो 15 दिन में वो बता रहे हैं गुरुजी ने उनको इतना लाड प्यार किया है, इतना अपनापन दिया, उनके सब सवालों को सुना पेशेंस के साथ और जवाब भी दिया. तो सुख गुरुजी पहले सबको खिलाते थे, उसके बाद खुद खाते थे. और सुखमणि जी ने देखा कि ये पहली जगह है जहां पर एक ही थाली में, एक ही प्लेट में 4 से 5 लोग खाना खाते हैं बिना ऊंच नीच के, बिना भेदभाव के. Eating with spoon was highly discouraged by Guruji, and this was a major problem for someone like me who didn't know how to eat with my hands. Each time I tried to sneak into the kitchen, he would catch me and send me back saying, "No spoons." Many times I was left with a lot of curry and no chapatis to eat with. There were the days when I had to use paper to scoop my curry. I also noticed that I was the only one who was given green chili every day by Guruji. Each time I sat down to eat, he would come and give me green chili or chili pickle. I was never fond of eating chilies, and this seemed very strange to me. तो ये बता रहे हैं कि वहां एक ही प्लेट में 4 से 5 लोग खाते थे बिना भेदभाव के, और चम्मच से खाना अलाउड नहीं था. सुखमणि जी के साथ ये बड़ी दिक्कत थी कि वो चम्मच से नहीं खा के बिना नहीं खा पाते थे, तो कई बार उनको चपाती से खाना पड़ता और कई बार करी बच जाती थी तो वो पेपर का स्पून बनाते थे, क्योंकि कई बार जब वो इधर उधर जाके चम्मच लाने का ट्राई करते थे तो गुरुजी पकड़ लेते थे और कहते थे, "नो स्पून, चम्मच नहीं." कुछ दिनों में उन्होंने नोटिस किया सुखमणि जी ने, जब भी वो खाना खाते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो गुरुजी आते हैं और उनको या हरी मिर्च दे देते हैं या अचार की मिर्च दे देते हैं. कि मिर्च खाने का सुखमणि जी को कोई भी शौक नहीं था, तो वो अमेज थी कि गुरुजी मुझे मिर्चें क्यों खिला रहे हैं. Many years later, when Guruji was in Delhi, जब गुरुजी बहुत सालों बाद जालंधर से दिल्ली आ गए, तो गुरुजी ने सुखमणि जी को कहा, "I see you don't have that kind of temper which you had when you first met me." I agreed and laughingly said, "Guruji, even I am surprised that I don't get angry very often now." तो जब दिल्ली आ गए गुरुजी और सुखमणि जी और बहुत समय के बाद गुरुजी से मिले, तो गुरुजी ने कहा, "मैं नोटिस कर रहा हूँ सुखमणि कि अब पहले की तरह तुम शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं हो, तुम्हें गुस्सा उतना नहीं आ रहा." तो जिसपे सुखमणि जी ने भी कहा कि हाँ गुरुजी, ये तो है. जिस पर गुरुजी हंसे और गुरुजी ने कहा, "मिर्चा खिला खिला के तेरा मैं गुस्सा कटिया है, कि मिर्च खिला खिला कर मैंने तेरा गुस्सा निकाला है." These few days with Guruji were like heaven. He had embraced all of us and taken us under his wings. He was what my mother was searching for all these years. His love was what I was looking for all my life. "You all have been given admission," said Guruji. "What does that mean?" I asked foolishly. Guruji replied, "I have accepted you all as my disciples." तो गुरुजी ने एक दिन उन सबको कहा कि आप लोगों को एडमिशन मिल गया, जिस पर सुखमणि जी अमेज्ड हुए कि इसका क्या मतलब है गुरुजी. तो गुरुजी ने कहा, "मैंने आप लोगों को अपना संगत के तौर पर अपना लिया है." तो सुखमणि जी बड़े खुश हुए, बट उन्होंने पूछा, "गुरुजी, डजंट एवरीवन बिकम योर डिसाइपल वंस दे कम टू यू?" क्या हर कोई आपकी संगत या का हिस्सा नहीं बन जाता जब वो आपके पास आता है? जिस पर गुजरेगा, "नहीं, हर कोई मेरा चेला नहीं बन सकता. हाले था कई लोगों को एडमिशन फॉर्म ही नहीं मिले." तो गुरुजी बता रहे हैं कि हर कोई मेरी संगत, हर कोई मेरा चेला नहीं बन सकता. आ तो रहे हैं, किसको एडमिशन मिलना है या नहीं वो गुरुजी के ऊपर है. तो गुरुजी कहते हैं, "अभी तो कईयों को एडमिशन फॉर्म तक नहीं मिले हैं. तानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਾਸਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋ. ਕੌਣ ਕਿਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੀਕ੍रेट ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ नहीं बता सकते कि आप सबको एडमिशन तो मिल गया है, लेकिन सब अलग क्लास में, और कौन किस क्लास में है ये एक महापुरुष कभी नहीं बताता. वो सिर्फ महापुरुष के जहन में ही होता है, उन्हीं की नॉलेज में होता है. हर कोई मेरे दरवाजे तो मेरे हुक्म दे बगैर अंदर भी नहीं आ सकता." गुरुजी ने कहा, "मेरे दरबार के दरवाजे के अंदर भी हर कोई मेरी आज्ञा के बिना नहीं आ सकता." गुरुजी was soft, kind, and yet at times no one could be as stern as him. Ego was something he never tolerated and often told people to leave theirs behind before coming to him. He was someone who could break you into million pieces and rebuild a more beautiful new you. All he ever wanted from his disciple was unconditional love, surrender, and whoever gave him these, their every little need and desire were looked after. गुरु जी केवल ये चाहते हैं कि आप उनसे अनकंडीशनल लव करो
और जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें पूर्णतः समर्पण सरेंडर कर दो गुरुजी को। उसके बाद गुरुजी जाने, फिर गुरुजी आपकी छोटे से छोटी जरूरत, छोटे से छोटी इच्छा को पूरा करते हैं। This is where my journey with my guru started, or should I say, this was a point in time from where I resumed my journey with my guru in this lifetime. I want to end. I want to add here that many years later, my doubt about birth charts being changed was also cleared by Guruji. बहुत सालों बाद गुरुजी ने कुंडली बदलने वाला जो उनको डाउट था वो भी दूर किया। कैसे किया? I felt that since the time and the place of the birth cannot be changed, how can the calculations be different just because he said so? तो उनको लगा भाई गुरुजी ने कह दिया कुंडली बदल दी, ऐसे थोड़े होता है, जन्म टाइम प्लेस तो वही रहती है, तो कैसे ग्रह चेंज हो सकते हैं। In 2008, I had given my date of birth to a friend in London who insisted on consulting his own spiritual guru. तो 2008 में उन्होंने अपनी डिटेल्स कुंडली की अपने एक फ्रेंड को दी थी जो लंदन में रहते थे, जिनके अपने स्पिरिचुअल गुरु थे, तो उन्होंने वो डिटेल्स उनसे शेयर की थी। He knew I was following Guruji, but he just would not take no for an answer. To humor him, I gave him my details. The next week, I waited impatiently for him to contact me and realized that he had completely disappeared from my social media, blocked me from every possible contact. I was very confused about his behavior and finally forgot all about it. And until around 2012, he suddenly contacted me again. तो जैसे उन्होंने डिटेल्स ही उनको ये था यार हफ्ते में वो अपडेट देंगे, तो उन्होंने यही कहा था, बट सडनली उन्होंने क्या देखा, हफ्ते 10 दिन बाद उन्होंने सब जगह पर सुखमनी जी को ब्लॉक कर दिया, नंबर ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया और कंटेक्ट टोटली छोड़ दिया है। जो देखकर सुखमनी जी बड़े शॉक हुए, बट वो फिर इस चीज को भूल गए। बट 2012 में सडनली सुखमनी जी शॉक हुए जब उनके उस फ्रेंड ने उनको दोबारा कंटेक्ट किया। सुखमनी, प्लीज डोंट बी मैड एट मी for disappearing from your life all these days. I had your birth chart read by my guru. I didn't want to convey to you all that. He said, I thought it's best to just not tell you and disappear. तो सुखमनी नाराज मत होना, मैंने अपने गुरु को तुम्हारी डिटेल्स कुंडली की शेयर करी थी और उन्होंने जो मुझे बताया उससे को बताने से बेटर मैंने ये समझा कि डिसअपेयर हो जाए। सो व्हाई आर यू कॉन्टेक्टिंग नाउ? सुखमनी जी ने पूछा, तो आप क्यों आए? आई आस्क्ड बिकॉज़ माय गुरु सेड दैट मोस्ट प्रोबेबली शी विल नॉट लिव थ्रू द हार्ड टाइम्स टिल 2012, बट इन केस शी डज देन शी विल बी इन पावर एंड हर स्टार्स विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। वो कहते हैं कि मेरे गुरु ने ये बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली 2012 तक आपकी जो ग्रह स्थिति है वो ऐसी है कि आप बच ही नहीं पाओगे, बट अगर आप बच गए तो आपकी स्टार्स बहुत अच्छे हैं, यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। He kept asking me if I had gone through a certain experience and I would reply in negative. वो पूछते रहे तुम्हारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था, ऐसा हुआ था, जिस पे सुखमनी जी ने नेगेटिवली रिप्लाई की कि नहीं नहीं नहीं। He would ask me if my mother went through certain issues. क्या उन्होंने पूछा कि क्या सुखी आंटी के साथ भी कुछ बैड एक्सपीरियंसेस हुए, ये हुआ, इस पर सुखमनी जी का नहीं। फाइनली आफ्टर रिप्लाइंग इन द नेगेटिव टू ऑल क्वेश्चन, ही सेड, सुखमनी, with folded hands, I want to tell you that please continue to follow your Guruji. He has obviously changed your destiny. I laughed and replied, yes, I already know that. जब सारी प्रेडिक्शंस का नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला उनके फ्रेंड को, तो उनके फ्रेंड ने कहा, सुखमनी, मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ, तुम्हें यही कहता हूँ कि तुम गुरुजी को फॉलो करते रहो, क्योंकि गुरुजी की कृपा से ही अनडाउटली सब कष्ट मिटे हैं। जिस पर हंसते हुए पॉजिटिवली सुखमनी जी ने कहा, हाँ, none of the bad experiences written in my birth chart ever occurred, and he kept me safe and happy throughout the worst periods of my life. सुखमनी जी कहते हैं कोई भी बुरा एक्सपीरियंस, कोई भी बुरी घटना नहीं उनके पास हो पाई, आई भी तो गुरुजी ने बड़े आसानी से निकाल दिया इन सालों में। तो ये था जी रीडिंग ऑफ चैप्टर 2 ऑफ द बुक सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव। इस बुक में सुखमनी जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं। सत्संग शेयर मीन्स अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं उनकी लाइफ के, गुरुजी से मिलने के बाद जो उनके साथ हुए और हो रहे हैं। तो हम इसकी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग के कोई भी गाइडेंस हो, सजेशन हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और रीडिंग में कोई भी गलती फंबल हो रहे हो या हुए हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और आप लोग से यही विनती, यही रिक्वेस्ट कि प्लीज अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में कहें टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिवाइन टॉक्स विद नितिन। कोई अपना एक्सपीरियंस, कोई अपनी बुक रीडिंग या कुछ भी आप लोग भी शेयर करना चाहते हो तो यू आर ऑलवेज वेलकम। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद द रीडिंग ऑफ चैप्टर 3 ऑफ द बुक। टेक केयर, बाय बाय।
जय गुरु जी।